दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी इमेज है, अगर आप उसमें चले जाते हो तो आपका करियर बन जाएगा, या व्हाट्स द रियलिटी मुश्किल है, वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, और बहुत लोगों को नहीं मिला, उन्होंने ड्रॉप आउट करा। सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी विद माय कॉलेज एंड भी कोएड कॉलेज ले लेना, भी कोएड कॉलेज ले लेना, अदर देन गर्ल्स कॉलेज आर वर्स्ट फॉर गर्ल्स। मेरा डिपार्टमेंट है, दैट फैकल्टी इज मतलब इट्स टॉप नॉच उनका। हेलो buddies, welcome back to my channel Man Vibes and I am Man. So today I will be doing a talk vlog. As you have already read the title that what I'm going to talk about, so let's start. So I will be talking about that how was my journey when I started to look for Delhi University and how I get into it in a good South Campus college. So I am in girls college, which is Kamla Nehru College for Women. I started my journey for looking for Delhi University, their admissions, and what was the process and how was my journey till I got the college and the first day when I get into the college for the orientation. Yeah, firstly, it was like कि when I gave my 12th board exam, so I had a clear picture in my mind that I have to get admitted into the Delhi University only because I was, as you can say कि कोई भी 12th 11th 10th का बच्चा होगा तो उसको यही लगेगा कि हाँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी इमेज है, अगर आप उसमें चले जाते हो तो आपका करियर बन जाएगा या फिर यू विल बी इन अ गुड प्लेस टू स्टडी टू हैव एक्सप्लोरेंस एंड जो भी है उस हिसाब से एक बच्चे के माइंड में अगर वो 10th 11th 12th में है तो यही रहता है। या फिर पेरेंट्स जो अगर यू बिलोंग टू दिल्ली तो इट्स नॉट ओनली दिल्ली, जो लोग बाहर से भी है उनको भी यही लगता है कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी, इट इज समथिंग विच इफ यू आर एडमिटेड इनटू इट तो आपकी लाइफ सेट है। बट what's the reality, I will be letting you know in this video. So what happened when I was in 11th and 12th, my mind was like I want to get admitted into Delhi University, and obviously it is always for every student to get admitted into the top colleges like North Campus, Hansraj, Ramjas, Kirori Mal and Miranda House for girls, Miranda House and Daulat Ram, and जो भी वहाँ पे कॉलेज हैं वो हिंदू and St. Stephen's. So it was in my mind that I have to get admitted into these colleges. Or tab as in a 12th grade student, I was not even aware of the proper colleges, what is North Campus, what is South Campus, what is off campus, and how I need to do the thing, what is the processes and everything. And the major thing comes here that jab mera batch tha, I was in 2023 batch and it was the CUET batch, second batch. CUET हुआ था 2022 में फर्स्ट, एंड उसके बाद सेकंड बैच जो था वो मेरा था जब CUET होना था। तो जो चीज़ बहुत न्यूली आई है वो इतना अभी मुझे नहीं पता, मुझे क्या किसी भी स्टूडेंट को इतना नहीं पता कि CUET क्या होता है, व्हाट्स इट्स प्रोसेस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ वी नीड टू गेट इनटू इट, और हाउ वी विल बी गेटिंग द कॉलेजेस. So what happened, I gave my 12th grade boards and I started searching that how it needs to be done. And wo search obviously it was on YouTube only. YouTube is something which gives you everything, every information, every video that you want, every learning you can take from YouTube. उसके अंदर सिंगल हर एक सिंगल वीडियो आपको मिल जाएगी. Then what happened, I started searching for it. I just took 2-3 channels, मैंने उनको ही अपना मेंटर एज मेंटर देख लिया था कि हाँ मुझे कैसे CUET फॉर्म भरना है, मुझे कैसे क्या करना है, जो भी है. So what happened कि I gave my exams, then I started, क्या हुआ था कि I just started looking for the colleges, that what are the top colleges in which I can get admitted. Firstly, as I am an arts student, my stream in 11th 12th was arts, humanities and with economics. So what happened, I firstly started looking for the courses that I can prefer in my ग्रेजुएशन. सो मैंने पहले वो देखे कि मेरे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उसके हिसाब से मैं क्या क्या कोर्सेज कर सकती हूँ, और उनके हिसाब से मैंने अपने प्रेफरेबल कोर्सेज को लगाना शुरू किया कि फर्स्ट कोर्स इफ़ आई प्रेफर, माई फर्स्ट कोर्स वॉज पॉलिटिकल साइंस, एंड देन मे बी मैंने ऐसे 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 लिस्ट करे, तो आई लिस्टेड सो मैनी ऑफ देम. क्योंकि जो CUET था, आपको ये लिस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो CUET था उसके अंदर बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे, नॉट ओनली दिल्ली, आई फिल्ड मैनी ऑफ देम, उनके बहुत अलग क्राइटेरियाज थे. Someone was asking for some criteria, another were asking for the other. So it was like that. तो पहले I have to list my subjects, disciplines that I am able to do. I am मतलब I have fulfilled the conditions of that thing. तो मैंने वो करा. तो first was my political science and then ऐसे ऐसे था. तो क्या हुआ कि मैंने वो लिस्ट करा, फिर वो मैंने लिस्ट एक साइड करके रखा. देन आई लुक अपॉन टू दैट हाउ टू डू CUET, व्हाट इज CUET, व्हाट इज इट नॉट जो भी है वो मैंने सर्च करा. तो CUET समथिंग विच वो एग्ज़ाम है जो आपको ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए देना पड़ता है, जो कि 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है. और जो CUET 2022 का था, वो जो बच्चे थे उन लोगों का जो रिव्यू था वो हमने मतलब जितने भी स्टूडेंट्स उन्होंने देखा होगा, मैंने देखा, इट वाज लाइक बहुत मुश्किल है, वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, और बहुत लोगों को नहीं मिला, दोनों ड्रॉप आउट कर या जो भी है, किसी की प्रेफरेंस शीट गलत भरी गई या फिर किसी के सब्जेक्ट गलत भरे गए, किसी को कोई और कॉलेज मिल गया, कोई और चाहिए था, ये सब हुआ.
देन सेकेंड वॉज आर बैच। तो हम सब ने ये सब देखा, मैंने ये सब देखा और मैंने अपने दिमाग में बस एक ही चीज़ सोची कि ये बहुत बड़ा चीज़ है करने के लिए, बहुत बड़ी मेहनत वाली चीज़ है। सिर्फ एक एग्जाम फॉर्म पहले तो भरना, उसकी प्रेफरेंस शीट भरना, उस और वो फॉर्म ऐसे नहीं था कि एक फॉर्म भर दिया हो गया, उसके भी लेवल्स थे कि आपने पहले फॉर्म भरा, अपनी डिटेल्स भरी, फिर एक साइट खुल रही है कि अगर डिटेल्स गलत है तो फिर भर दो, फिर वो पूरा चेकिंग हो रहा है, फिर आपका नेक्स्ट चीज़ आ रही है, प्रेफरेंस भरना है, फिर आपका कॉलेज भरना है, जो भी है वो आ रहा है, ठीक है। तो एक सिर्फ सीयूटी फॉर्म वॉज अ बिग टास्क टू डू एट दैट टाइम विद हैविंग अ नॉन मेच्योर्ड माइंड। अकॉर्डिंग टू मी तब इतना मेच्योरिटी नहीं होता है बच्चों में एज अ 12th ग्रेड स्टूडेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर 3 years। सो आई नो कि तब मेरी मेच्योरिटी आती है और अब क्या है। आई एम नॉट दैट मेच्योर टिल नाउ ऑल्सो, बट differences are always there. So what happened then, I just look into things that what is CUET, how we need to do it. And the main thing I'm proud of myself is that I did not took any single and a small help from anybody to fill out my forms, and it was a correct thing. Each and every point I did was the correct. सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आई थी कि उनको फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा था, और मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट कि आपकी जो फोटो थी उसमें फोटो डलनी थी, दैट वॉज नॉट अपलोडिंग। बहुत लोगों की ऐसे हुआ कि वो अपलोड, मेरा खुद हुआ है कि मैंने जितनी भी मेरे पास मेरी फोटोज थी मैंने सब डाल के देख ली, कोई फोटो नहीं डली। और जब मेरी फोटो डली वो मेरी इतनी अनफॉर्मल कैजुअल फोटो थी, वही डली बस। और फिर मैंने फॉर्म जो है फिल करा कि हाँ आई वॉन्ट दिस कॉलेज, आई वॉन्ट दिस कॉलेज, और मेरे दिमाग में तब था कि आई डोंट वॉन्ट गर्ल्स कॉलेज because what happened, till 10th I was in co-ed school, uh, a public school. Then I, because of some reasons, switched towards the girls college, the government, sorry, girls college nahi, I switched towards the girls school, the government school. Something happened that I would be telling you another day. So for 2 years, 11th and 12th, I was studying in a girls school, गवर्नमेंट स्कूल, यस। मैंने वो प्रेफरेंस शीट बना के रख ली, और वो प्रेफरेंस शीट आई थिंक सो आई डू हैव इट, और मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसको अपने, मेरे एक डॉक्यूमेंट फाइल है, मैंने उसके अंदर रख रखा है। अगर वो हुआ तो आई विल बी एडिंग दैट थिंग। तो मैंने अच्छे से टॉप टॉप कॉलेजेस रख लिए। तब मतलब ऐसे था, बहुत ऐसे होता है ना, कि अपने पे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस होता है, हाँ मुझे तो किरोड़ीमल मिल जाएगा, या मुझे तो सेंट स्टीफन मिल जाएगा, या हाँ मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, आई विल बी गेटिंग इट टू हिंदू college. But after getting the college, after allotted, when I was allotted the college, I just broke that time. Ki what happened after getting a good score in CUT? What happened that I did not got North Campus, but hopefully I got South one. But the college that I did not wanted, I got that, the girls college. और मुझे वो चीज़ का रिग्रेट मे बी आज तक होता है कि मैंने वो क्यों डाला कॉलेज, क्योंकि मैंने सोचा था मैं गर्ल्स कॉलेज डालूंगी ही नहीं, क्योंकि आई डोंट वांट इट। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप गर्ल्स कॉलेज में रह के नहीं ले सकते, एंड बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं उस चीज़ के, एंड दिस इज़ द क्लियर कट थिंग। येस, गर्ल्स कॉलेज हैव मेनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस से ज़्यादा दे हैव डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ देम सेल्फ ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, एनी अदर पर्सन, बिकॉज ऑफ देम ओनली। और यही ट्रुथ है। और व्हाट हैपेंड, आई जस्ट डिड द प्रेफरेंस शीट एंड दिस मैंने पूरा फॉर्म भरा। एंड मैंने जो एग्जाम में कुछ 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिसमें हमें एग्जाम देना होता है सीयूटी का, तो इट वाज लाइक कि सम ऑफ कॉलेजेस वांटेड जर्नल स्टडीज एंड आई डिड नॉट वांट टू गिव दैट। मुझे नहीं देना था उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ दैट आई एम एबल टू क्रैक दैट जर्नल स्टडी, बिकॉज आई वाज एंड आई एम टिल नाउ नॉट गुड इन जर्नल जीके स्टडीज, जर्नल जीके, नो सॉरी, जीके जर्नल नॉलेज, जर्नल जीके व्हाट इज इट, हाँ। तो जर्नल नॉलेज आई एम नॉट दैट गुड, सो आई डिड नॉट गेट इन टू इट कि अगर मैं उसको भर दूंगी तो उसको मैं नहीं कर पाई, उस वजह से मेरा पूरा स्कोर खराब होगा एंड आई विल बी रिग्रेटिंग अबाउट इट। सो आई डिड नॉट फिल दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मुझे नहीं करना। तो जितने भी क्राइटेरिया जनरल नॉलेज के अंडर थे वो एग्जाम और डिसिप्लिन के, मैंने उनको हटा दिया अपनी लिस्ट से, और मैंने वो चीज़ें रखी जो जनरल नॉलेज के अलावा मुझे मिल सकती थी, लाइक पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स और दिस मैंने वो सब रखा। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने 4 एग्जाम दिए। आई गेव I gave political science, I gave the physical education, I gave English, I gave maybe one more, I am not able to recognize it कि मैंने क्या कौन सा सब्जेक्ट दिया था, but I gave 4 of them। और उसके बेसिस पे I was like when I saw the name कमला नेहरू कॉलेज फॉर women, I was like what is this, जो मैंने सोचा था कि ना मिले। मेरा पहली चीज़ यही थी कि मुझे वुमेंस कॉलेज ना मिले, मुझसे गलती हो गई वो प्रेफरेंस शीट में भर के, और वो जा चुकी थी प्रेफरेंस शीट, एंड आई वॉज लाइक कि वही चीज़ मिली। बट it was good that it was fortunate I got South Campus. It was where I go for my college. The area is so posh and nice. From if I compare from North Campus safety, and it is so safe. My college area. I'm going from since 3 years, and it is very nice. If 3 times the paper I gone for it, and एक दिन में मेरे 2 एग्जाम थे तो 4 एग्जाम हो गए। एक दिन में 2, एक दिन में 1, एक दिन में 1, हाँ। तो तीनों लोकेशंस जो थी बिल्कुल अलग थी। तो तीनों लोकेशंस बहुत डिफरेंट थी। एक में भी मेरा था कहाँ जाके जो मे बी डोंट नो द
एक SSN कॉलेज है, इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, SSN कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद, उसके पास जाके एक सेंटर है IGO ऐसे कुछ है, आई डोंट नो। वहाँ पे मेरा 7:30 एग्जाम था। आई एंड माई फादर वेंट देयर एंड हम लोग घर से निकले थे 5:45 पे, और हम लोग वहाँ पे वो ढूंढना, क्योंकि पहली बार था, कुछ पता नहीं था और वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। उसको ढूंढते ढूंढते हमें बज गए थे 7:15। और फिर हम वहाँ गए, हम लोग पहुँचे वहाँ पे, एंट्री वगैरह हुई। एंट्री का सीन ये था कि एंटर करके, नॉर्मल एंट्री होती है बहुत आसानी से, और एंटर करके आपको मतलब आपके कानों में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास रबर बैंड जो है वो ऐसे कुछ नहीं होने चाहिए, पता नहीं कुछ तो था, रबर बैंड होना चाहिए या पता नहीं क्लचर्स नहीं होने चाहिए, ऐसा था या मुझे याद नहीं है वो चीज़ अभी। और कुछ कान में नहीं, नाक में नहीं, हाथ में नहीं, पेन वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, कुछ नहीं। आपका एडमिट कार्ड, आपकी 2 फोटोग्राफ और आपका ID। सो वो था। आपकी एंट्री हुई नॉर्मल, देन आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स के बाद आपको जो आपका टेबल है वो अलॉट होता है, और आपका जो स्क्रीन है उस पर ऑलरेडी आपका एडमिट कार्ड एंड योर फोटोग्राफ इज देयर ऑलरेडी। और फिर आपको जो है वो बैठा के रखते हैं जब तक सारे बच्चे आ नहीं जाते। देन उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, फिर वो स्क्रीन ऑन होती है, कुछ पासवर्ड होता है जो भी है वो ऑन होके फिर आपका जो एग्जाम कंप्यूटर पे स्टार्ट होता है। आपको पहले ऐसे होता है इंग्लिश सेक्शन या जो आपका एग्जाम वो सेक्शन, इतना टाइम होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इसको आप सेव कर सकते हो, इसको आप लेट गो कर सकते हो, फिर नेक्स्ट कर सकते हो, ऐसे कुछ कुछ कुछ। बहुत सब बच्चों ने अभी तक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स दिए ही होंगे, कुछ ना कुछ, CUT नहीं तो कुछ कम्पिटेटिव या फिर कोई भी एग्जाम, तो सबको पता होगा कि क्या प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली इट वाज लाइक यू आपको एक शीट दी जाती है, नॉर्मल वाइट शीट, कि आप अपने कैलकुलेशंस या रफ वर्क कर सको, एक पेन दिया जाता है, और फिर आपकी अटेंडेंस शीट आती है, आपकी फोटोग्राफ लगती है, आपका साइन होता है, then आपकी अटेंडेंस शीट आती है, आपका फोटोग्राफ लगता है, आपका साइन होता है, और आपका पेपर होता है नॉर्मली। कुछ नहीं होता कि बहुत दूर दूर आपके बेंचेस हैं या फिर आपका डेस्क है। अगर आपका एक बच्चे का डेस्क यहाँ पे है एंड देन सेकंड बच्चे का डेस्क बिल्कुल ऐसे साथ में होता है, यू कैन सी ईच अदर स्क्रीन, वो बस साथ में ऐसे लंबा सा लगाते हैं, उसको कोई वो नहीं है, वो बिल्कुल दिख जाता है। और व्हाट हैपेंड, मेरे को याद है कि जब मेरा पहला एग्जाम इंग्लिश एंड मे बी जो सेकंड एग्जाम जो लास्ट एग्जाम फोर्थ मुझे याद नहीं वो था, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, तो शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम मी एंड आस्क्ड फ्रॉम हर आल्सो, हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा। बट व्हाट हैपेंड व्हेन शी गेव मी आंसर, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो वो चीज़ मैंने देखा वो खुद कुछ और मार्क कर रही थी और मुझे कुछ और बता रही थी। तो आई वाज लाइक आई कांट ट्रस्ट एनीवन। उसने मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे को जो आता था या मुझे जो कंफर्म था या नहीं था, मैंने उसे बता दिया। मैंने उसे भी बता दिया कि मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं है, पर मैं ये मार्क कर रही हूँ, तो आपको करना तो करना, नॉट ट्रस्ट एनीवन। अपने आप जो आता है वो करो, नहीं तो मत करो। ऐसे ऐसे मेरे एग्जाम्स हुए। एक एग्जाम मेरा था बवाना साइड, रोहिणी साइड, जो एकदम बॉर्डर लगता है, वहाँ पे मेरे फादर मुझे लेके गए, बट शायद वहाँ पे मेरा हाँ वहाँ भी सुबह का एक स्लॉट था। थर्ड एग्जाम जो था ना मेरा, वो मेरा था नोएडा सेक्टर 64 या 64 में भी। वहाँ पे मेरा और मेरी एक फ्रेंड थी, जो मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसका दोनों का हमारा सेम सेंटर था और सेम ही जगह था, सेम लैब में था, बस आगे पीछे था ऐसे। तो हम लोग खुद चले गए थे क्योंकि हमारा एक तो था आफ्टरनून शिफ्ट, तो हम लोग दोनों चले गए थे। तो हमने वहाँ पे दिया एग्जाम एंड देन हम आ गए। मेन थिंग इज दिस कि CUT का फॉर्म बहुत ऐसे होता है कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिल इट एंड यू आर डूइंग इट एंड यू डिड समथिंग रॉन्ग, देन इट विल बी अ डिजास्टर। बट इफ़ यू आर डूइंग इट कामली, यू नो इट, और यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवन एंड वो सही से भर गया तो सही है। तो यू हैव टू लुक इनटू योर स्टडीज़ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपको आपके हिसाब का कॉलेज मिल जाए। सो देन कॉलेज अलॉटशन हुआ, और फिर जब मिला कॉलेज तो उसके अंदर एक वो आता है कि आपको कॉलेज को लॉक करना है या फिर यू वांट इट टू बी अपग्रेडेड। तो मैंने अपग्रेडेशन किया ही नहीं, मैंने कहा ठीक है यार, जो मिल गया ठीक है, जो फर्स्ट चीज़ फर्स्ट वो मिल गया, इट्स गुड। और मुझे कोर्स भी मुझे मिला था, आई एम डूइंग फिलोसफी ऑनर्स सिंस 3 years एंड इट्स माई एंड थर्ड ईयर एग्जाम्स आर गोइंग अभी। तो वो मैंने लिया एंड देन उस पर कुछ आया कि यू हैव टू जस्ट गो एंड कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा इतना, क्योंकि भाई 3 साल हो गए, इतना याद नहीं है। उसके बाद मैंने वो कॉलेज के बारे में सब कुछ सर्च किया, कैसा है क्या है, पेरेंट्स को दिखाया, बहन वगैरह ने देखा सब, एंड दे वर लाइक कि ठीक है, मतलब उनको उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, दे वर लाइक कि नॉर्थ कैंपस नहीं मिला या ये वो, बहन करी थी, पता नहीं क्या था। तो फिर हुआ, तो उन हम लोगों को ग्रुप में ऐड हुए, हम लोग एक ग्रुप जो अभी तक है हमारा कुछ था, तो उसमें ऐड हुए। फिर हमें डेट मिली कि आपका ओरिएंटेशन डेट ये है, मे बी इट वॉज 16 अगस्त और 6 अगस्त, मे बी 16 या फिर 6 अगस्त, 6 से रिलेटेड कुछ था। तो मुझे इतना याद है कि वो था हमारा ओरिएंटेशन डे, वो था हमारा ओरिएंटेशन डे। तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि कॉलेज कैसा होगा कैसा नहीं होगा या जो भी है वो। तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द प्रिपरेशन फॉर गोइंग देयर। मैंने कपड़े वगैरह सेलेक्ट किए, सब कुछ देखा हुआ, फिर गए। तो पहले दिन मतलब नोबडी वेंट विद मी कि छोड़ के आना है, बस लाइक ठीक है मैं खुद चले जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ जाना है। आई लिव इन दिल्ली और मेरे लिए इतना कुछ वो नहीं है कि दिल्ली में कोई साथ जाएगा कॉलेज, इन लोगों को जाना भी नहीं था और मेरे को ऐसा कुछ था भी नहीं, तो आई वेंट अलोन। और देयर वाज कि उन्होंने बोला था कि अपना जो फी स्लिप है, फी स्लिप, हाँ जो हमने पहला फी स्लिप भरा था उसमें ये था, हाँ जो हमारे पास था ना लॉशन, उसमें था या तो इस कॉलेज की फीस भर दो या फिर इसको अपग्रेड कर दो। तो उस टाइम अगर यू आर अपग्रेडिंग देन ऑल्सो यू हैव टू पे द फीस, तो तुम्हारा अपग्रेशन आएगा उसके अंदर तुम्हारी फीस जो है वो हो जाएगी, मतलब कंपनसेट हो जाएगी दूसरे कॉलेज में। अगर तुम्हारा कुछ अमाउंट होगा तुम्हें वापस आ जाएगा, इफ यू हैव टू पे मोर देन यू विल बी पेइंग द मोर अमाउंट। तो बट हमने फीस भरी थी, तो पहली फीस स्लिप यू हैव टू टेक विद यू, सॉरी यू हैव टू टेक विद यू कि आपका रिकॉग्निशन हो कि हाँ आपने इस कॉलेज की फीस भरी है और आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो वहाँ पे हमारे थे गेट पे हमारी जो प्रेसिडेंट थी वो खड़ी थी, तो इट वाज लाइक कि हाँ चले गए। फिर हमारा वो हुआ, हमें एंट्री मिली,
देन वी गॉट एंट्री एंड तब बड़े खुश 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 थे बच्चे से. वी वर लाइक ग्रोन अप गर्ल. और अब अकेले आना जाना मेट्रो से, ऑटो से. तो हमारा कॉलेज ऐसे कि मेट्रो है जो कि है ग्रीन पार्क हमारे कॉलेज के सबसे पास, और उसके बाद वी टेक ऑटो टूवर्ड्स आवर कॉलेज. कितना है, 1.3 किलोमीटर कुछ है. उसके लिए पे 20 रुपीज़, और हम लोगों को वहाँ पे वो उतारते हैं कॉलेज के सामने, क्योंकि कमला नेहरू एंड गार्गी आर इन सेम लेन एंड बहुत पास पास है. तो दोनों के बच्चे उसमें ही आते हैं, तो हम लोग उतरते हैं उसमें. देन वी गेट इनटू कॉलेज बाय शोइंग आवर फी स्लिप. देन हमें बताया जाता है कि अगर यू आर फ्रॉम फिलोसफी ऑनर्स तो दैट रूम इज अलॉटेड टू यू, तो और आपको उस रूम में जाना, आप ओरिएंटेशन उस रूम में है. तो ऐसे थोड़ा सा घबराते हुए, थोड़ा सा नर्वसनेस लेके आई वेंट इनटू दैट रूम एंड बच्चे देखे, अपने सीनियर्स जो थे वहाँ पे थे, दे वर वेलकमिंग अस, और हम लोग जा जाके ऐसे सीट्स पे बैठे. तो हम लोग बैठे और बाकी बच्चे आए, तो क्या हुआ, क्या आए तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन शुरू हुआ लड़कियों में, हम लोगों में, कि फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, क्या है, क्या किया है 12 में, या पे क्या नाम है, कहाँ रहते हो. समबडी वर फ्रॉम अनदर स्टेट, समबडी फ्रॉम मे बी, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे कॉलेज में जो अदर कंट्रीज से भी हैं. बट इन माई बट इन माई ईयर, मेरे ईयर में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो अदर कंट्री से है, नहीं नहीं है. तो दे वर फ्रॉम अदर स्टेट्स. बातें शुरू हुई, फिर हमारा ओरिएंटेशन जो कि है शुरू हुआ. तो जो भी हमारे पूरे डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, दे केम, दे सैट ऑन चेयर्स इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सीनियर्स ने हमारा वेलकम करा, ग्रीटिंग्स दी, एंड देन दे स्टार्ट द ओरिएंटेशन. और सब कुछ बताया कि आपका ये फिलोसफी का ऑनर्स ये है, ये फिलोसफी, ये सब कुछ 3 ईयर का कैसे हुआ, क्या क्या आपका सेमेस्टर थिंग्स है. देन they started our introduction, and it was the most nervous part for me, or maybe from all of us who were sitting there as first years and first day students. तो हम लोगों ने वो इंट्रोडक्शन दिया, हमारी हॉबीज़ वगैरह पूछी गई, जो भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, आपका नाम, पेरेंट्स, और जो भी है, जो कहाँ से रहते हो, क्या आपकी हॉबीज़ है, क्या आपको करना है, कौन सा कोर्स. फिर हमसे पूछा गया क्या ये आपका कोर्स प्रेफरेबल था, फर्स्ट प्रेफरेंस थी. एंड आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई ईयर एंड माई कोर्स सेड नो, वी जस्ट गॉट इट बाय accident. And I was one of them. I wanted political honors as my first preference, but I did not, and that's why I chose G as political science. G, the person who are studying in DU may be knowing it, maybe kya, obviously knowing it, what is G. And journal elective course we get in every semester the elective course, sorry. अब ये हुआ, देन हम लोगों का नॉर्मल कॉलेज शुरू हुआ. तो व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो इज दिस, कि जब भी जब मैं 12th में अपना चीज़ें वो कर रही थी, मैंने सिलेक्शन के लिए सोचा, मुझे बहुत बार ये फील हुआ, क्या मैं पेपर क्रैक कर पाऊंगी, या फिर क्या मैं कर पाऊंगी, अगर नहीं कर पाए तो आई विल बी ड्रॉपिंग इट आउट अ ईयर, और क्या मैं कुछ और करूँगी. और मेरा मेन रीज़न जो है ग्रेजुएशन करने का, वो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी कि ग्रेजुएशन करने का मेरा मेन रीज़न क्या है. इंस्टेड ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन, माई पेरेंट्स वर आस्किंग मी टू डू सम अदर कोर्सेज विच आर लाइक, आई won't tell you the courses, but yeah, they wanted me to do that. One of them I may tell you, that is being a air hostess, yes. Doing studies from the Frank Finn Institute, and be a cabin crew, and just, but my goal was something else. Until now it is something else. I want to do something other than some things, and that's why I took graduation. It is very important for that goal, and I want to do that thing, but I am not on that track, but soon I will be. So what happened, जो भी CUET के एग्जाम्स थे हम लोगों ने वो करे, क्रैक हो गया, अच्छा स्कोर बना था. आई वाज लाइक कि मिल जाएगा, बट नहीं मिला. बट ओके, आई गॉट द कॉलेज, एंड seriously I am not happy with my college, and I am saying this, and this statement is very big, but it is reality. The girls college from my side, they are the worst. If somebody will be asking me a suggestion that which college should a girl get admitted into, I will always tell them, I will always be telling them, कोई भी कोएड कॉलेज ले लेना, कोई भी कोएड कॉलेज ले लेना, other than girls college. Girls college are worst for girls. I don't know what's this, but हाँ they are. इतना गंदा एक्सपीरियंस है मेरा 3 साल का. I don't want any other girl to take that experience. I don't know who love girls college, who are they, and why they love so. Maybe they have their own reasons. उनका खुद का reason है, but from my side, don't take girls college, please. If you are taking Delhi University, take your Coed college. Just don't think they are off campus or not campus or south campus. Just take Coed college. According to me, off campus are much better than that of girls college and north and south campus. जो ऑफ कैंपस का कैंपसेस है, जो मैंने कैंपस देखे हैं, इतने बड़े कैंपस, इतनी चीज़ें, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी थिंग्स, देयर आर फैसिलिटीज, देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज एयर कंडीशन, उनकी लाइब्रेरीज, उनके फैकल्टी. और हाँ, बट जो मेरा कॉलेज है, मेरा डिपार्टमेंट है, दैट फैकल्टी इज, मतलब इट्स टॉप नॉच. उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी डेडिकेशन पढ़ाने के लिए बहुत 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 अच्छी फैकल्टी है. नॉट ओनली माइंड, एज आई हैव टेकन SEC और SAC AEC
वैक और जी ये सब लिया है, सारी फैकल्टीज बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेड, बहुत मोटिवेटेड वे में पढ़ाती हैं, तो आई कैन नॉट क्वेश्चन ऑन द फैकल्टी, बट आई एम क्वेश्चनिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ गर्ल्स कॉलेज. दे आर वर्स्ट. So this is something, and I will be talking about my experience in some another video. And this is the journey that how you start from 10th, 11th, 12th. First you give your exams, your boards, then you have to set a preference list, your college preference, your subject preference, your eligibility criteria, and then you have to fill the form, then you have to give the preference sheet, then you will be allotted with a college, and then you have to just lock the college or freeze the college, and maybe you have to upgrade it, or then you have to fill the fees, and then you will be in that college. बस यही है, and this is all what I want to talk about. And guys, if you are in 12th, so just look upon to that कि आपका कंफर्ट किस चीज़ में है, कि आपको पास का कॉलेज चाहिए, कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाओ अपने कॉलेज में सुबह सुबह, बिकॉज क्लासेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9 and they are, regardless कि you are in first year or third or fourth year, they are starting from 9 and you have a big burden on yourself till 4:30 and sometimes 5:30 also in second year. So वो देख के आप कॉलेज लेना, आपको क्या चीज़ सही लगती है, कॉलेज गर्ल्स कॉलेज. अकॉर्डिंग टू मी, डोंट टेक गर्ल्स कॉलेज. आई डोंट नो अबाउट द अदर गर्ल्स कॉलेज, बट माइन जस्ट डोंट. ठीक है, तो अपने हिसाब से अपना पढ़ाई जो आप कर सकते हैं, अपने आप को प्रेशराइज मत करना. जैसे आई न्यू माई सेल्फ कि मैं जीके का एग्ज़ाम नहीं इतना अच्छे से दे पाऊँगी, मैंने फिल आउट नहीं करा. सो बी इन योर कम्फर्ट फॉर सम थिंग्स एंड फॉर सम अदर थिंग्स यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम कम्फर्ट, बट कुछ चीज़ों में कम्फर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज़ देख के सब कुछ करना. एंड कॉलेज ठीक है, यू गेट एक्सपीरियंस, यू गेट एक्सप्लोर अबाउट थिंग्स, बट एवरीथिंग जो आप चीज़ सुन रहे हो या देख रहे हो या जो आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसको बिना एक्सपीरियंस करे डू नॉट ट्रस्ट इट, और बिना किसी लॉजिकल रीज़न के. सो दिस वॉज द वीडियो दैट आई वॉन्ट टू मेक, आई वॉन्ट टू शेयर माई थॉट्स ऑन. एंड guys, if you like my videos, please share, comment, like and subscribe my channel for more such informative videos, and I will be making some more videos on some more information and my thoughts and my experiences. So I will be meeting in my next talk vlog, so till then please support for more.